Hello and welcome back to another edition of Kickoff Conversation. And this time we are discussing the match preview of Manchester United versus Brighton. The kickoff is at 11:30 p.m. PST, and I am joined by Kuldoon and a fan from the Pakistan Manchester United supporters, Kashif Azim. So welcome, Kashif, to our show. Thank you. Uh, Match is at Old Trafford, and we first of all we discussed the international break. We had a big break in between. तो क्या कहेंगे आप लोग, कैसा रहा इंटरनेशनल ब्रेक? I think we were lucky in terms of the minutes some of our starting 11 played in the international break. For example, I think it was just McTominay who played all 3 matches for Scotland. Nobody else played 3 matches. And I think Harry Maguire and Lindelof and Dan James played 2 matches each. All the other players were either rested completely or just played 1 or 1.5 matches. So in terms of rest, I think it was positive for us. Yes, Pogba getting a decent run of games after injury, it was important for France. And Daniel James scored for Wales, a very important winner for Wales as well. It was a header, unlikely header. उसके अलावा तो Maguire scored for England as well. Very important. Scored a winner. Against Poland. And और जाके जॉन स्टोन्स को उसने बड़ा जप्फी डाली कि कोई गल नहीं, हो जाता है, इट्स ओके. हाँ नहीं. उसके अलावा Martial got injured against Kazakhstan, and interestingly he was the man of the match in that match as well. He got injured, but he got the assist for that goal, which I think Griezmann scored. The only thing I am happy for Manchester United is Bruno is coming back early and he's fit. And the second plus point, I can see that Pogba getting minutes. And I'm expecting them both to start the game tomorrow. And it's like a treat to watch. Whenever Pogba plays, Bruno do wonder things. Bruno alone do wonder things, but when Pogba in the team, especially I observe, he's just like I am there to explore the new things and do whatever I want, and everything he tries to do, he came into a positive result. But I think that's the most important thing for us, that Pogba getting the minutes after injury and Bruno is coming early in Manchester and he's fit. So yes, that's the only positive I see. Complement each other very well. Yes, too much. And जब भी ब्रूनो और जब भी पॉगबा खेले हैं साथ, तो मैंने एक और भी चीज ऑब्जर्व की है, पीछे आप फ्रेड को खिला दें, मैटिक्स को खिला दें, मैकटोमिने को खिला दें, जिसको मर्जी खिला दें, वो काम चल जाता है. तो लेकिन जब वो ये दोनों का जो है ना ट्वीक ब्रेक होता है, तो वी डू स्ट्रगल. अब पॉगबा इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और उसके भी आजकल वो बड़े रूमर्स चल रहे हैं, स्पेशली जो हमने डिस्कस नहीं किया इंटरनेशनल ब्रेक में, मीनो ने फिर स्टेटमेंट दे दी है, और वो एक स्टेटमेंट बड़ी गलत है, इस टाइम पे नहीं देनी चाहिए. जब हमारा क्रूशियल सीजन होता है, वो इस तरह की स्टेटमेंट दे देता है. अब आगे मैचेस हमारे बहुत क्रूशियल हैं, तो उसने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी है, तो मेरा ख्याल से वो नहीं देनी चाहिए थी उसको. बट एज वी नो, मीनो एंड हिज स्टूपिड, उस पे तो पूरी एक अलग पॉडकास्ट हो सकती है, मिनी रेओला पे और हमारी ट्रांसफर मार्केट में, उसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन और फैंस बड़े वो इवन के जो लास्ट बात है, इसके बाद हम विल मूव ऑन. फैंस बड़े वो एक किस्म का ना, एक वो पॉगबा इन पॉगबा आउट का एक जिसे कहते हैं ना, एक आर्मी बनी हुई है. आधे लोग कहते हैं जी बेच दो इसे. तो मेरा हमेशा यही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ओके, हम उसको बेच देते हैं 150 मिलियन का, लेकिन क्या हम इन टाइम उसकी कोई रिप्लेसमेंट साइन कर लेंगे? हमारी ट्रांसफर पॉलिसी इतनी अच्छी तो है नहीं कि हम उसकी कोई रिप्लेसमेंट साइन कर ले. तो दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न आई हैव. अब अगर हम मार्केट में लास्ट टाइम जब थे ग्रिलिश के लिए, तो अब भी लोग कह रहे थे यार ग्रिलिश क्यों साइन करना है? अगर आपके पास ग्रिलिश होता तो आप खुशी कह दे यार जाओ पोग्बा दफा हो जाओ. तो आप ग्रिलिश की जो एस्टन विला है वो सरवाइव कर गए, इस दफा फिर उन्होंने रेलीगेट नहीं होना, दे आर परफॉर्मिंग वेल, तो उनका भी 100 मिलियन तो पक्का मांग लेना. ऊपर से वो ब्रिटिश है, तो 100 मिलियन तो उसका पक्का है. देखते हैं क्या बनता है. हाँ जी, इंशाल्लाह. लेट्स होप फॉर द बेस्ट.
यस, चलते हम टीम न्यूज की जानिब। तो रैशफोर्ड इज अ डाउट विद एंकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल ब्रेक में इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं खेल पाया। यप ग्रीनवुड, बट यस। मैंने कहा इसने ज्वाइन किया था ना होटल, क्लोज रहना चाह रहा था वो अपने टीममेट्स के लिए, आई थिंक सो, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। उसके दैट्स बाद फिर आई थिंक वापस आ सो पॉजिटिव साइन। Greenwood is also injured. He missed the England under 21 team as well. Martial Mhm. played for France, but he had a knee injury versus Kazakhstan in that match. Cavani is getting back to full fitness, so which I think is a good sign, and he might start the match against Brighton as well. Lindelof played for Sweden. I think एक मैच खेला है या दो मैच दो खेला है। दो मैच दोनों पूरे खेला है। हाँ, उसके बाद फिर उसकी बैक का फिर इशू आ गया एंड ही मिस द ट्रेनिंग। What buy? Do we have a buy back in the team? बाई बाई भी मेरे ख्याल इंटरनेशनल ब्रेक से पहले तो उसका प्रॉब्लम था, कोई नॉक थी, लेकिन आई थिंक ही प्ले आइवरी कोस्ट वो नहीं आइवरी कोस्ट के खेला। लिए एक मैच खेला है, कुछ 60-70 मिनट Okay, खेला था। okay, okay. आई थिंक ही That's a मस्ट बी big achievement, playing 60-70 minutes. फिट। यस। ये तो आधा सीजन हो गया भाई का 67 हाँ बिल्कुल। हम चलते हैं आगे जी। आप लोगों की स्टार्टिंग 11 क्या प्रेडिक्ट, स्टार्टिंग 11 ब्राइटन के क्या? मेरे ख्याल में कवानी करेगा स्टार्ट। शायद डहया को वापस ले आए। सॉल्शायर से पूछा था हेंडरसन और डहया के बारे में, तो उसने, क्योंकि पिछले 6 मैचेस हेंडरसन ने स्टार्ट किए हैं, लेकिन उसने अब क्लियर का कोई जवाब नहीं दिया कि जी अब हमारा ऑफिशियली नंबर 1 कौन है। तो लेकिन मुझे लग रहा है डहया शायद स्टार्ट करे। लिंडलॉफ अगर फिट है तो वो, नहीं तो बाई, मैगवायर, वैन बिसाका, लूक शॉ, फ्रेड और पॉग्बा खेलेंगे साथ। फ्रेड की बोंगियों के बावजूद, जो लेस्टर वाले मैच में की थी उन्होंने, उसके बावजूद शायद, क्योंकि मैकटोमिने 3 मैच खेला है मुसलसल, तो फ्रेड को शायद खिलाए। बाकी रैशफोर्ड, फर्नांडिस और डैन जेम्स। मेरे ख्याल में मार्शियल भी फिट नहीं है, ग्रीनवुड भी फिट नहीं है, तो ये वहां में स्टार्टिंग में। यस, मोर और लेस आई थिंक। लेकिन मेरे ख्याल से हेंडरसन स्टार्ट करेगा। आई डोंट सी डेविड। मुझे मतलब नॉलेज में इजाफा कर दें, स्पेन के इंटरनेशनल मैचेस में दहया प्ले 2 मैचेस और नहीं, he वो didn't play. He नहीं didn't play खेला, at all. नहीं खेला। ओके वो लीव पे था, वही फैमिली रीजन की वजह से लीव पे नहीं था। नहीं नहीं, he was there but he was not chosen. ओके ओके ओके, दैट्स So मुझे आईडिया नहीं था। that is one of the reason I think that he might not come back straight into the आई थिंक starting सो, 11. यस आई थिंक सो। अगला मैच आई थिंक सो हमारा यूरोपा लीग में ग्रांडा के साथ है, विच स्पेनिश क्लब है, तो आई थिंक सो वो I उसको think थोड़ा yes. सा दहेया को उसी मैच में लेके आएंगे। स्पेनिश वाइब है थोड़ी सी, I स्पेनिश also टीम है think. तो उसमें उधरा। हाँ, तो आई थिंक सो हेंडरसन माइट स्टार्ट एंड वैन Hmm. बिसाका, लिंडलॉफ, मैगवायर, शॉ, फ्रेड और मैटिच के दरमियान आई थिंक सो सोल्शायर विल चूज, बिकॉज जो टीम होती है ना ब्राइटन एंड हॉल्बियन, ये जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैटिच का शायद चांस बन जाए, क्योंकि जाहिर बात है दे विल मोस्टली वो अपना जो फोकस है वो इस तरह काउंटर पे रखेंगे। और यूनाइटेड को भी आदत है काउंटर पे खेलने की, तो यूनाइटेड को जब अटैक करना पड़ता है तो काउंटर में स्पेसेस ज्यादा बन जाते हैं। बकाया वही टीम है आगे, कवानी इन द मिडल, डैन जेम्स लेफ्ट से आपका जो है। मुझे लग रहा है कि कहीं जो है ना कल का मैच जो है कहीं पे इस माटा को ना स्टार्ट करवा दिया जाए राइट विंग Mata से, injured था। डैन जेम्स। I don't know हाँ, he अब is आई back डोंट in नो training. उसकी। हाँ, तो माइट बी पॉसिबल। बकाया सेम टीम है और वो मिड जो है हमारी वो पॉगबा, ब्रूनो, एवरीथिंग इवॉल्व्स एंड इन्वॉल्व्स हिम अराउंड देम, तो बकाया वही टीम है। रैशफोर्ड ट्रेनिंग में था, तो मेरा ख्याल है शायद रैशफोर्ड स्टार्ट करेगा, और फ्रंट पे फिर वही डैनियल जेम्स, कवानी और रैशफोर्ड ही लग रहा है। इन द he मिडल might save him from the यूरोपा लीग के लिए उसको सेव भी कर सकता है सोल्शायर। यस, लेट्स सी, बट आई होपफुली यूरोपा लीग तक मार्शियल वापस आ जाए। उसकी इंजरी बहुत सीरियस नहीं है। ही माइट रिटर्न फॉर द यूरोपा लीग मैच, तो लेट्स सी नहीं, हाउ इट गोस। ऑन अ लाइटर नोट, वो वापस आ जाए या इंजर्ड रहे तो बोथ बोथ आर ओके सिचुएशंस। As far as his form is concerned, but let's hope for the best. क्या बनता है। So let's यस, see the current form and the fixture importance.
Some very interesting stats here. Manchester United have won each of their last 5 meetings with Brighton in all competitions, netting exactly 3 goals in each of their last 4 matches. Then Brighton have never won away against Manchester United in 12 previous visits to Old Trafford. They've drawn 2, Another record. lost 10, and losing each of their last 6 games at Old Trafford against the Red Devils. Another very interesting stat is 23% of the goals scored in Premier League meetings between Manchester United and Brighton have been from the penalty spot, 5 out of 22 goals. And no fixture has seen a higher ratio scored from the spot in the competition, minimum 20 goals scored in the fixtures. So Bruno, my boy. इस मैच हमने देखा है ब्रूनो ने विनर मारा था 96 मिनट, जो कि पेनल्टी हमें मिली थी रिटर्न फिक्सचर में, जिसपे मोरिनियो ने कहा था कि फाइनल विसल हो जाती है, लोग घर चले जाते हैं, यूनाइटेड फिर भी जीत जाती है. Mourinho is never out of the story. तो वो काफी इंटरेस्टिंग एक था, वो मेरा ख्याल है सेकंड फिक्सचर था सीजन का, और वन दैट मैच 3-2. And another interesting stat is United are looking to keep 5 consecutive Premier League clean sheets for the first time since August 2017 under Jose Mourinho. 4 years almost हमने 5 consecutive Premier League clean sheets नहीं रखी. तो this was some that में इससे थोड़ा सा अंदाजा ये भी होता है कि Solskjaer will definitely go for Henderson. मतलब वो एक फॉर्म में है, क्लीन शीट चल रही है, तो yes, I think there is no logic of dropping Henderson right now when he's in top form. Yes. हमने उसे रखा ही इसलिए था, इसलिए तो लॉन पे नहीं जाने दिया उसे कि he is there to totally compete the here. और जाहिर बात है जब कंपटीशन है टीम में तो एज यू नो, अब लूक शॉ जो है वो इस टाइम में वो जो है रोबर्टो कार्लोस की उसमें रूह आई हुई है, तो वो इंग्लैंड हो या यूनाइटेड हो, वो मतलब कमाल है, मतलब यकीन ही नहीं आता ये लूक शॉ है. और मुझे याद है आज भी जब यूनाइटेड ने ट्रांसफर की थी एट दैट टाइम, आई थिंक सो 27.5 मिलियन, तो मूरिनियो ने उस टाइम भी बोला था, मूरिनियो एट दैट टाइम वाज चेल्सीज मैनेजर, के इतने पैसे तो नहीं हम लेफ्ट बैक्स के लिए ले सकते. अब जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो मतलब वो तो उस टाइम को याद ला रहे हैं हम, कह रहे तो पैसे पूरे कर रहा है. तो यही उससे एक्सपेक्ट था, यही उसकी साउथहैम्पटन की फॉर्म थी. तो अब उम्मीद है कि वो आगे भी अल्लाह खैर करे ऐसा खेलता रहे, क्योंकि वो एक टाइम पे उसने लास्ट टाइम जब उसने इस तरह की फॉर्म पकड़ी थी ना अंडर लुई वैन हॉल, जब उसकी जाहिर बात है वो उसको इंजरी हो गई थी बड़ी गंदी किस्म की, एट दैट टाइम भी उसने वो जो है ना वो यही वाली फॉर्म पकड़ी थी. आई होप सो कि अब ये वाली फॉर्म ना उसकी ना आ जाए, और हमारे लिए हाँ जी बिल्कुल. तो चलते हैं प्रेडिक्शंस पे. I am going with a 3-1 United win. Kashif is also going with a 3-1 United win, and Kuldoon is going with a 1-0 United. तो आप कह रहे हैं क्लीन शीट हम रखेंगे? हाँ, मेरे ख्याल में पांचवी क्लीन शीट हम रखेंगे, और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैच है, वैसे भी थोड़ा स्लो टेम्पो होगा इसका, और अगर पहले मतलब कुछ काफी देर गोल ना हुआ फर्स्ट हाफ में तो ब्राइटन को तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा. हालांकि आज जो वेस्ट ब्रॉम मैच जीती है, हालांकि गैप है अभी भी, लेकिन वो West Brom winning today has dragged the likes of Newcastle and Brighton back into a relegation battle of sorts, because Fulham is a couple of points behind Newcastle as well. तो शायद I think so. वो हो. हाँ, मैं कहना चाह रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आई थिंक सो हमें बिग सैम पे एक अलग पॉडकास्ट करना चाहिए यार. वो क्या बंदा है, हर वो डूबती कश्ती को सहारा देने वाले बंदे हैं ये लोग. मतलब रेलीगेशन में सैम एलरडाइस, हर जगह बिग सैम इज देयर. नहीं, आज चेल्सी ने भी ड्रॉप किए पॉइंट्स, लेस्टर ने भी ड्रॉप पॉइंट्स किए हैं. City have won their match, so they have now 17 point lead over us while we have 2 games in hand. So City को इस वक्त पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर कल का मैच जीत जाएं तो सेकंड प्लेस तकरीबन जो है वो सॉलिड हो जाएगी बहुत ज्यादा. यहाँ पे नेक्स्ट जो मैच है वो उसके बाद टॉटनहम अवे है, तो वो इससे पहले ये वाला मैच काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉटनहम भी अब करीब है टॉप 4 के, और चेल्सी के हारने के बाद अभी इस वक्त लिवरपूल आर्सेनल चल रहा है, पता नहीं क्या स्कोर है उसका, लेकिन लिवरपूल भी, और दोनों से जो भी टीम
आर्सेनल तो खैर के पॉइंट सबसे ज्यादा, लेकिन अगर लिवरपूल जीत जाती है आज तो लिवरपूल भी फिर वही दे विल बी इन द मिक्स अगेन। लिवरपूल एक्सट्रीमली क्रूशियल दैट वी शायद पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे, वो 5th पे आ जाएगी शायद लिवरपूल, या शायद ज्यादा हो जाएगा एक पॉइंट। तो बहुत टफ है, लेकिन हमारा कल का मैच जीतना बहुत जरूरी है। सेकंड प्लेस यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो भी बात हुई 17 पॉइंट्स की। मैंने खुद भी ग्रुप में एक दफा पोस्ट की थी कि सोल्शायर के अंडर हमने प्रोग्रेस मेड की है, लेकिन अब आप देखें ना कि लाइक आई थिंक सो, ये शायद कमेंट आई डोंट नो लोगों को थोड़ा ऑफेंड कर दे, लेकिन हम उसके अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम अभी तक हम वो बार नहीं तोड़ पाए। मुरीनियो ने 82 पॉइंट्स का जो बार सेट किया था जब हम सेकंड पे आए थे, बेशक उस सीजन में भी सिटी से हम 20 पॉइंट्स के डिफरेंस पे थे, लेकिन वो 82 का बार तोड़ना है। जाहिर बात है आपकी टीम प्रोग्रेस कर रही है, फिनिशिंग सेकंड आई थिंक सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। थर्ड से आप सेकंड पे आ गए हैं, आपको वो जो रोना नहीं पड़ रहा चैंपियंस लीग के लिए, लेकिन ना वो बार तोड़ना है आपने लेकिन जब आपकी टीम। हाँ, ये ज्यादा इससे ज्यादा ऑफेंसिव बातें हम करते रहते हैं पॉडकास्ट में, ये इतनी ऑफेंसिव बात नहीं थी। नहीं हम हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टीम को प्रोग्रेस करना है तो सोल्शायर एज अ मैनेजर उसको ये चीज अचीव करनी पड़ेगी। हाउ आई कैन बी 80 पॉइंट या 85 पॉइंट मैनेजर, देन ही वो उस लीग में आएगा ना जिस लीग में अब आप तो हम कम्पीट टाइटल करते हैं। रेस के लिए कर सकते थे, अगर हम 82 पॉइंट्स हाँ टाइटल चैलेंजर्स बन सकते थे, जो कि हम बिल्कुल बिल्कुल बनना बिल्कुल चाहिए था इस सीजन। लेकिन दरमियान चाहिए में था हमने बहुत वो बहुत ज्यादा पॉइंट लूज किए। ये वेस्ट ब्रॉम वाला मैच हो उसमें गया, वो फील्ड वाला मैच हो, जेम बहुत गैर जरूरी पॉइंट्स जेमी जो है ड्रॉप। हाँ बिल्कुल, जेमी कैरिगर का भी मैं सुन रहा था, उसने कहा कि यूनाइटेड ने कभी अपने आप को बिलीव ही नहीं किया कि यार हम तो टाइटल कंटेंडर्स हैं, हम टाइटल के लिए हमें compete करना चाहिए। उसने कहा कहीं ना कहीं उनके अपने माइंड में कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था। वो मुझे चीज रियलिटी लगी, वो उसकी बात काफी हद तक ठीक थी। कहता उन्होंने अपने आप को चैलेंज ही नहीं किया। उन्होंने आसान गेम्स जो थी, इवन कि वो जो लिवरपूल वाला मैच था वो उस पर बोला, कहता कि यूनाइटेड इजीली जीत सकता था वो मैच, लेकिन उन्होंने वो बिलीव ही नहीं दिखाया जो एक टाइटल टीम का होना चाहिए, और वो बात ठीक थी। और मेरा ख्याल है कि इस साल जो है, अब दोबारा कोविड की सिचुएशन है, मुझे माइट बी पॉसिबल कि हम इस दफा प्लेयर साइन कर लें, शायद इस दफा सेंचो आ जाए। लेकिन जिस तरह हम एक साल जो प्लेयर हमें कमी के महसूस के हम साइन करते रहते हैं ना, अगले साल हम उसी तरह मिस आउट भी करते रहते हैं। तो मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो आई विल मतलब एक पोजीशन पे आपको इस दफा फिर कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमें 4 पोजीशन चाहिए, स्ट्राइकर, राइट विंगर, डिफेंसिव मिडफील्डर एंड अ सेंटर बैक। हमें फिर कभी 4 मिल नहीं सकते। वो पता नहीं मुरीनियो था, उसने 4 पता नहीं किस तरह साइन कर लिए थे एडवुड वर्ड से कह के, और वो लुई वैन हॉल ने 6 कर लिए थे। अब पता नहीं एडवुड वर्ड कहता है कि भाई निकलो, कोई चक्कर नहीं है, पैसे पुसे नहीं है। अगर कल डेहिया ने स्टार्ट ना किया तो वो समर में जा रहा है। अच्छा, नहीं नहीं ये जरूरी नहीं then he's officially the number 2 ना, then he's officially our number 2. Would he be happy being our number 2? I don't think. नहीं, मेरे ख्याल से कि वो उसको लेके आएगा वापस, दहिया वापस आ जाएगा प्रीमियर लीग की लाइनअप में भी, लेकिन उसको टाइम से लेके आएगा सोल्शायर। इट्स अ नेचुरली बात है कि हेंडरसन की फॉर्म लगी हुई है, तो दहिया माइंड नहीं करेगा कि यार इट्स ओके। या मेरे ख्याल में हेंडरसन को ही नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन मैं दहिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वो फिर कल का मतलब है ऑफिशियली फिर दहिया नंबर 2 हो गया कल। मैं एग्री नहीं कर रहा इस पे, लेकिन यूरोपा लीग में उसके पास है चांस कि वो अपने आप को दोबारा प्रूव करे, एंड देन ही कैन। यूरोपा लीग में हमारा नंबर 2 ही खेलता है ना हमेशा। अभी तो हमारा चैंपियन लीग वही है ना, यूरोपा लीग ही है ना, वो तो फिर खेल ही नहीं रहा, वो सर्जियो रोमेरो तो खेल ही नहीं रहा ना, जो हमारा यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट है। Thank you for watching, and this was all the preview of United versus Brighton, and we will catch you up soon after the match, and hopefully we bag the 3 points. And please thanks don't for inviting me. No, thank you so much for coming. Thank you for coming. नहीं, thanks for inviting me and it's a great and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे बड़ी अच्छी ये बड़ी अप्रिशिएटेबल है कि बहुत अच्छा ही इंशाल्लाह और भी लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंशाल्लाह इन्वॉल्व होते जाएंगे। और वो भी इनवाइट करें हम, इट्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द यूनाइटेड सपोर्टर्स। हाँ, so I will try to reach some old like group members. तो हाँ, तो क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा वो एक
जाहिर बात है वो थोड़े हम जज्बाती भी जल्दी हो जाते हैं ना, तो फिर भी वी शुड शो सम पेशेंस एंड Yes. ऑल द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर मैनचेस्टर Okay. यूनाइटेड फॉर टुमारोज गेम. Yes. Thank you so much for watching, and please don't forget to like, comment, and subscribe the channel, as we say after every podcast. And do keep watching. We will be back. So, thank you so much. Thank Thank you. you. Khudafis.